Morning dear kids. Today I am continuing with your same topic, that is solids. In that we are taking exercise 21b, problem number 2. Now in problem number 2, if you can notice, it is given there is a swimming pool of 40-meter length. The figure is already given to you, so I'll zoom a bit so that you can understand it well. It is given the 40 meters length, okay, and 15-meter wide. We have been given 15-meter wide. Its shallow and deep ends are 1.5 meter and 3 meter. So I have 3 meter here and here 1.5. Okay. And you have, if the bottom of the pool slopes uniformly, find the amount of water in liters required to fill the pool. Now my dear kids, this is the see, when you want the amount of water in liters to fill the pool, इस pool में कितना पानी आएगा, for that we need to calculate volume. Am I correct with this? Yes, so you need to calculate volume. One point is clear, but how you will get the volume of such kind of structure? The structure is something like this. So when, see, in before previous exercises we have done cube, cuboid, and to find the volume of that we had proper formulas. But here what we have to do is, we have to take volume is what? It's a cross section area, and this is your cross section, trapezium. आगे का पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, और पीछे की आपकी लंबाई है. So how you will find the volume? Always remember volume of any kind of structure is the area of cross section into length, पीछे का length, or you can also call it as height. ठीक है, पीछे की लंबाई, ये h लिख लो, no problem. Got my point clear? Okay, so now if you can make it here, I'll just erase this. Now the cross section of swimming pool is trapezium, that is done. And trapezium के आपके सब dimensions दिए हुए हैं, depth दिए हुए हैं, मतलब sum of parallel sides दिया हुआ है, into height दिया हुआ है. Okay, okay, let's start now. So trapezium आपका है ऐसा. This is 40, this is 1.5, this is 3. Correct? So how you will find area of trapezium? As I said you, we are going to find volume. And for volume, you need to have area of trapezium into length. लेंथ बोलो, उसको बहुत सारे जो हाइट बोलते हैं, जो पीछे का है. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. Sum of parallel sides into height. This is trapezium का formula. Into पीछे का length. Okay, we'll see what length is given. I guess your length is given as 15 meters. Am I correct? This is your wide, मतलब इतना लंबाई है उसका, तो that is your 15 meters. Now let me put all the values. Half sum of parallel sides, that is 1.5 plus 3. And height, this is given as 40 of the trapezium, into पीछे की लंबाई है 15 meter. All are in meters, I guess? Yes. So now you have to calculate this, and once you calculate this, my dear kids, what value you will get will be the volume of this structure. Got my point clear? So you have to multiply this and get the value. Once you got the volume, now because every unit was meter, so your volume will be meter cube. लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? Let's see. You have to give the amount of water in liters. So now how to convert meter cube into liters? 1 meter cube is equal to 1000 liters. तो जितना आपका आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, so you will get your answer in liters. Is that very clear? So you have to understand, whenever volume of such kind of structures is given, you have to take area of cross section into पीछे की लंबाई, nothing else. Let's see what is next.
In our next, it is given the cross section of a tunnel perpendicular to its length is a trapezium ABCD. तो हम लोग को दिख रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम जैसा है ABCD. Also given that AB is equal to BN. तो मार्किंग करते जाते हैं AB. I'm sorry, it's AM is equal to BN. AM is equal to BN. AB is 7. AB पूरा 7 है. Okay. CD is 5. This is 5. The height of the tunnel is 2.4. The height is 2.4. Now what does that means? Let's see. So this is given as 2.4. So everything is available to you. Now further it says the height is done. The tunnel is 40 meter long. तो पीछे से इसकी लंबाई है 40 meter. Now what you have to find? You have to find the cost of painting the internal surface of tunnel excluding floor. You have to paint this tunnel. So when you paint this tunnel, you will take an area, surface area. You will not go for volume. So you have to take surface area. उस surface area में आपको सिर्फ paint the surface of the tunnel excluding floor. So you don't have to take the floor. Now how to find the surface area? Let's see. What is surface area? जैसे आपने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था, it was volume and volume was what? Area into पीछे की लंबाई, cross section area into पीछे की लंबाई, that was volume. But now I have to calculate surface area of this structure. So what we will go for? We'll go for perimeter into पीछे की लंबाई. So surface area of such kind of structures will be perimeter into length. Now for perimeter, what all things you will include? Because you do not have to include the floor, so in perimeter you don't take floor. What you have to take? You have to take AD, DC, CB. So you have to add AD plus DC plus CB, and whatever answer you will get of perimeter, you have to multiply with 40. Why 40? Because 40 is the पीछे का length, उसकी लंबाई. So from here you will get the surface area. But my dear kids, do you have the value of AD and CB? No, you don't have the value. How you will get it? Let's see. I'll zoom a bit the screen so that we can all see the structure. Now here if it was given that your AB was 7. Am I correct with this? Yes. And CD was 5. And if you notice, MN is parallel to CD, so MN will also be 5. अगर MN 5 है तो क्या मैं AM और BN जो आपस में इक्वल है उनको 1 1 ले लूँ? So this entire will be 7. MN will be 5. AM is 1 and BN is 1. And the height DM is given as 2.4. Here also CN will be same 2.4. So my dear kids, if I take this triangle that is DMA, this one, and if I go by Pythagoras, I have DM in hand and I have AM in hand as 1. Can we not find AD by Pythagoras? Yes, can we not find? Yes, AD square is equal to AM square plus MD square. From there you will get the value of AD. Once you got the value of AD, similar will be the value of BC. Because BC find करने के लिए अगर आप इस triangle में जाएंगे, that is CNB, the dimensions are same. CN is 2.4 and NB is 1. So when you go for Pythagoras, you will get the same value for CB. And I'll tell you what value you are going to get. You will get it in decimal, that is 2.6. Got my point clear? So now we are finding surface area. For surface area, I said we have to take perimeter of this structure into पीछे का length. And in your perimeter, you are not going to take the base. Why you are not going to take the base, my dear kids? Because it is said excluding the floor. So in that perimeter, you don't have to take the base. So as I said you the formula, it will be perimeter into length. In perimeter, you are going to take AD plus DC plus CB into 40.
सो यू हैव ए डी एज आई सेड अभी अभी फाइंड किया 2.6, डी सी आपको 5 दिया हुआ है, सी बी आपका 2.6 है। इन तीनों का एडिशन कर दो, इनका एडिशन आएगा 10.2 और इसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 408 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर में होता है, यूनिट स्क्वायर। सो यू विल गेट द एरिया एक्सक्लूडिंग फ्लोर। नाउ दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट. Now second part they have said cost of paving the floor at the rate of 18 per meter square. अब आपको फ्लोर को पेव करना है या टाइलिंग करना है तो उसका कैसे निकालेंगे? अब ये हो गया पीछे का फ्लोर, ये ए बी नीचे का, ये नीचे का है, पीछे की तरफ भी इसकी लंबाई है, ये टनल है। तो थोड़ा सा आप विजुअलाइज कीजिए कि टनल का अगर आप फ्लोर ले रहे हैं तो फ्लोर का पीछे का लंबाई हो जाएगा, हम लोग को दिया हुआ था द सेम आई गेस 40 इट वॉज, हाँ पीछे का 40 है और अब हम लोग लेंगे बेस 7। तो अगर आप 7 इंटू 40 कर देंगे तो आपको बेस की एरिया आ जाएगी। गॉट माई पॉइंट? सो बेस एरिया, फ्लोर की एरिया आपकी आएगी 7 इंटू 40 से और जो आएगा आंसर यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 18 इट इज गिवन। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग. इज दैट पॉइंट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेकेंड पार्ट, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट. Second part you will find the area of floor. For area of floor you will take a base that is 7, that is your breadth, and your length will be 40. When you multiply with this you will get 280 meter square, that is area of floor, and this 280 meter square you have to multiply with cost per unit, that is 18. Once you multiply this, you will get the final answer for your total cost. Got my point clear? Next we are taking with problem number 6. Let's see what it says. It says there's a cross section. The cross section of a piece of metal 4 meter in length. ठीक है, 4 मीटर पीछे की लंबाई है आपकी. Then it is given, okay, cross section of metal 4 meter in length is shown below. The area of cross section हम लोग को ये फाइंड करना है. देखो कोई भी चीज़ का क्रॉस सेक्शन ये आगे से दिखने में ऐसा है और पीछे से इसकी लंबाई है 4 मीटर. गॉट माई पॉइंट? तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके कोई फिक्स्ड फॉर्मूलाज नहीं होते हैं. वी हैव टू मेक द फॉर्मूलाज एंड ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम इज व्हाट? Perimeter of the front side cross section into length. And what is your surface area? Sorry, I went wrong. Yes, volume is what? It is the area of cross section into length. And what is surface area? It is the perimeter of the cross section into length. तो for example, अगर मैं आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रही हूँ, ये लेंथ है 4 मीटर, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा. ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड. सो आप क्या करोगे? अगर आपसे वॉल्यूम पूछा है तो आप क्या करोगे कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन है ये सर्कल, तो इस सर्कल की एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर और ये हाइट इंटू 4, हाइट लिख लो पाई आर स्क्वायर एच. तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं. और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा इसका सरकमफ्रेंस, मतलब इसका पेरीमीटर, जो कि सर्कल है तो हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, एंड दैट इज 2 पाई आर और पीछे का हाइट h. सो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं. तो क्रॉस सेक्शन पे ध्यान देना है कि उसका फ्रंट पार्ट में वो दिखने में कैसा है और उसको फिर हम लोग पीछे की लेंथ या हाइट जो भी आप बोलते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? तो अब ये हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूंगी तो आपको और क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर है कैसा. This is not the trapezium. If you want to make it a trapezium, it can be a trapezium. So चलेगा, we can divide the structure into 2 parts. एक पार्ट आपको ये मिल जाएगा जो कि आपका रेक्टेंगल हो जाएगा और एक पार्ट मैं येलो से मार्क करती हूँ, ये आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा. एम आई करेक्ट? दिस इज अ ट्रेपेजियम शेप. अब आप नीचे की एरिया फाइंड करो एज अ रेक्टेंगल और ऊपर की येलो पार्ट की एरिया फाइंड करो एज अ ट्रेपेजियम. पुट द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम. बट क्या आपके पास सब डायमेंशंस हैं? लेट्स सी माय डियर किड्स, ये पूरा 12 है और ये वाला 7.5 है, तो रिमेनिंग पार्ट आपका हो जाएगा 12 माइनस 7.5, दैट विल बी 4.5.
तो वो 4.5 क्या हो जाएगा आपका, इसका हाइट, ट्रेपेजियम का हाइट। तो ट्रेपेजियम का हाइट आपके हाथ में है, एक पैरेलल साइड 16 है। व्हाट अबाउट दूसरा पैरेलल साइड, बिकॉज दिस इज 10 हियर, कैन आई मार्क दिस ऑल्सो 10। तो मेरे ट्रेपेजियम के पार्ट्स क्या आ रहे हैं, 2 पैरेलल साइड्स आर 16 प्लस 10, सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट आपकी 4.5 है। 4.5 कहाँ से आया, तो मैंने 12 में से 7.5 माइनस किया तो 4.5 आया, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। फ्रॉम हियर आई विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, करेक्ट। नाउ नीचे की तरफ आते हैं। सो नीचे यू कैन नोटिस दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, जो भी मैंने ब्लू से मार्क किया है। इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, सो रेक्टेंगल एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 7.5। एम आई करेक्ट। तो इस तरीके से आपको दो एरियाज आ जाएंगी और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी फिलहाल हमसे फर्स्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही पूछा है। गॉट द पॉइंट क्लियर, ओके परफेक्ट। इन योर सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड you have to find volume of the piece in cubic centimeter। ठीक है, तो अब आपको वॉल्यूम निकालना है, सब सेंटीमीटर में ही है, कोई कन्वर्जन की बात नहीं रहेगी। लेट्स सी, वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिखूंगी, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया और पीछे की लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। हाइट पीछे की बोलो या लंबाई बोलो, वो 4 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट, ओके। ना वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी क्या निकली, ये जो दोनों एरिया आपने ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल की जो एरिया फाइंड की है उसका जो एडिशन किया था ना, दैट इज योर क्रॉस सेक्शन की एरिया, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपको मिल जाएगा पूरा वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। Got my point clear? So that was your second part. Easy calculations, you can do it well. Next is, उसके बाद दिया हुआ है if 1 cubic centimeter, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है 6.6 grams. Calculate the weight of piece of metal nearest to kg. अब आपके पास कितने वॉल्यूम का आपको मेटल मिला है, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो here you will get an answer of volume। जो वॉल्यूम आ रहा है आपका, I'll tell you what volume you are getting. I think you will get 53400 centimeter cube. Once you got that volume, 1 centimeter cube का 6.6 grams है, तो 53400 centimeter cube का कितने ग्राम्स का वॉल्यूम आएगा, that you have to get it, and then you have to get me into nearest kg, मतलब राउंड अप करके फिगर देना है। आपका डेसिमल में आएगा आंसर, तो उसको राउंड अप करके उतना किलोग्राम देना है। ठीक है, आपका आंसर ग्राम में आ रहा है तो ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करके आंसर देना है। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ट्रेपेजियम एंड द रेक्टेंगल डाउन। वो क्रॉस सेक्शन एरिया को पीछे की लंबाई जो कि 4 मीटर्स दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम हो गया तो आपको ग्राम्स निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 6.6 ग्राम्स, तो आपका जो आंसर आया है 53400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स वॉल्यूम है इस कंटेनर में, तो उसका कितना ग्राम्स रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 8 विच सेज देयर इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। आपका एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 32, सो यहाँ पे मैं 32 सेंटीमीटर लिख रही हूँ, यहाँ पे 26 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ है। स्क्वायर ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम द कॉर्नर्स, तो मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट कर रही हूँ, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड, ये आपने कट कर दिया, इमेजिन करो कि साइड के 3 सेंटीमीटर्स आपने कट कर दिए हैं, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आपको इंटरनल डायमेंशंस आने हैं, आपके बाहर के 3 कट हो गए और अगर आपने फोल्ड कर दिया यहाँ से कंटेनर, समझा? अब आपने क्या किया, ये तो कट हो गए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो आपको क्लियर होगा। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ गया। So this is your structure now.
ये आपका स्ट्रक्चर है। कॉर्नर के जो हम लोग के स्क्वायर्स थे 3-3 सेंटीमीटर के, वो गायब हो गए। जब गायब हो गए, अब जो ये वाले हैं ना, ये ब्लू, इनको फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ। इसको फोल्ड कर दो, फिर इसको फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड कर दो डॉटेड लाइंस पे, और आपका एक कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर था तो आपके कंटेनर की हाइट क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो हाइट उतनी ही रहेगी। व्हाट अबाउट द इंटरनल डायमेंशंस? मैंने आपको बताया था ये पूरा 32 था, तो अगर आपको ये रेड लाइन चाहिए तो इसका इंटरनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कम, यहाँ से 3 कम, मतलब टोटल आपको 32 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। 32 माइनस 6, सो इंटरनल लेंथ विल बी 26। और इंटरनल ब्रेथ क्या होगा, क्योंकि ये पूरा 26 था, अब आपको फिर से 6 माइनस करना पड़ेगा, सो इंटरनल ब्रेथ विल बी 20। हम 6 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से 3-3 कम हो गया ना। आपने 3-3 के स्क्वायर्स काट के फेंक दिए और उस जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको आपने ऐसे टर्न करके खड़ा कर दिया, तो मतलब आपका जो बड़ा सा कार्डबोर्ड था वो अब छोटा हो गया। तो कितना छोटा हो गया उसका लेंथ और ब्रेथ, उसका लेंथ और ब्रेथ आपका 6 माइनस करके आपके इंटरनल डायमेंशंस आए हैं। Getting my point clear? So your length is 26, your breadth is 20. Am I correct with this? And your height, as I said, you have to consider 3. So now you have length, breadth, height, and you have to find capacity. Capacity means what? Capacity means volume. And we know the volume of cuboid structures जिनके पास length, breadth, height होता है, उनका volume क्या होता है? Length into breadth into height. Correct? So you have to multiply these 3 values and you will get your answer. Okay, perfect. Next, okay, then we'll go on to 10th problem. अब 10th problem कैसा है, let's see. Now the following figure shows a closed victory stand. ठीक है, winning stand के ऊपर खड़ा करते हैं ना. Okay, so victory stand whose dimensions are given to you in centimeter. Find the volume and the surface area of the structure. Volume find करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन की एरिया इनटू पीछे का लेंथ। अब क्रॉस सेक्शन में कैसा स्ट्रक्चर है वो देखो, जहाँ जहाँ मैं रेड मार्क कर रही हूँ वो उसका क्रॉस सेक्शन है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन की एरिया लेनी पड़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू पीछे की लंबाई, क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट? क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ये 3 डब्बों का जो मैंने रेड मार्क किया वो इसका आगे का पार्ट क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन की एरिया के लिए आपको इसको थोड़ा सा मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो आप देखोगे कि आपके पास 3 रेक्टेंगल्स हैं, तीनों की एरिया फाइंड कर दो, उन तीनों की एरिया को ऐड कर दो और वो आ जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। और पीछे का लेंथ, अब पीछे की लंबाई के लिए अगर आप नोटिस करोगे ये 40 है, तो पीछे की लंबाई आपकी आ जाएगी 40। एम आई करेक्ट विद दिस? ठीक है, तो यहाँ से आपका निकलेगा वॉल्यूम। ध्यान देना है, 3 डब्बों की जो आप एरिया निकाल रहे हो, तीनों को आपको ऐड करना है, पीछे की लंबाई 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कौन से 3 डब्बों का आप एरिया निकालोगे? आई टेल यू, आई मेक इट येलो से। मैं जो कर रही हूँ उन सब की एरिया, सो दिस इज 20/30, दिस विल बी 30 यस, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, ये बीच वाला डब्बा है इसके डायमेंशंस, और उसके बाद आपका ये छोटा वाला डब्बा है येलो से जो मार्क किया है 30/30। करेक्ट? तो इस तरीके से आपके 3 जो फ्रंट क्रॉस सेक्शन है उनको आपको एरिया फाइंड करनी है 3 डब्बों की, और उसको ऐड करके आपको पीछे की लेंथ 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द वॉल्यूम। नाउ यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया है, सरफेस एरिया किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इनटू लेंथ। आगे के स्ट्रक्चर का पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। आई बात समझ में? तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे रहेगा, लेट्स सी। आगे का स्ट्रक्चर का पेरीमीटर मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन सब की वैल्यूज़, और नीचे का ये साइड, इन सब की अच्छा सरफेस एरिया में ना आप नीचे का मत डालो। आई टेल यू वाई, क्योंकि ये जो विक्ट्री स्टैंड्स होते हैं ना तो नीचे से खाली होते हैं। सो आई थिंक सरफेस एरिया में ना आप चाहे तो ये नीचे का पार्ट मत डालो। पेरीमीटर जब निकालोगे ना तो पेरीमीटर आप ये एडिशन कर दो, 20 + 30, फिर इसका डायमेंशन, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर
इस तरीके से आप पेरीमीटर निकालो और जो पेरीमीटर आ रहा है उसको पीछे की लेंथ मतलब 40 के साथ मल्टीप्लाई करो. तो दिस विल गेट यू व्हाट? दिस विल गेट यू द सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेरीमीटर मीन्स एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स. तो इस स्ट्रक्चर के फ्रंट पार्ट के एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, जहाँ पे भी मैंने रेड मार्क किया है उसके एडिशन लेकर पीछे की लंबाई से मल्टीप्लाई करो. दैट विल गिव यू द सरफेस एरिया. गॉट माई पॉइंट क्लियर? गॉड ब्लेस.